हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल कुछ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल 1.13 of chapter first, electric field. Then according to example, infinite charge of 4 microcoulomb means there are several charge of 4 microcoulomb are at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively on x-axis. Okay, infinite line, infinite charge है and वो on x-axis पर placed है like this, and charge first one is placed at 1 meter. Suppose this one is at point A and charge here at 1 meter coordinate or distance, and another charge is at 2 meter. This one is at 2 meter, this one is at 4 meter, and respectively other charge at like this. Clear? On x-axis, determine the force on 1 coulomb charge at origin. Okay. Then there is another charge at origin which is equals to 1 coulomb. Suppose that at origin, ओके, गिवन चार्ज है 1 कूलम. क्लियर है? तो अपने को फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन ड्यू टू दीज चार्जेस. क्लियर? नाउ व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ड्यू टू दीज चार्ज देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड ऑन ओरिजिन. मतलब कि ये सब चार्ज जो है इस ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे. क्लियर? एंड जो चार्ज की वैल्यू है, जितने भी चार्ज है, चाहे ये Q1 है चाहे Q2 है, these all are equal in magnitude, okay, and also in nature, and each one is of 4 microcoulomb. Means charge Q1, Q2, Q3 and Q4, these all are equal and equals to 4 microcoulomb. That means 4 into 10 raised to power minus 6 coulomb. And this one is x-axis. Then according to question, we have to find out force on charge 1 coulomb which is placed at point O or origin. Clear? Suppose that name of this one is Q0. Suppose that. Okay? कुछ ऐसा है. Then अब देखो, charge Q1 will apply force on charge Q0 in this direction. Suppose that is FA. Similarly, charge Q2 which is placed on B will also apply force like this in same direction FB. Due to C there will also be force in this direction. Due to D there will also be force in this direction. Then charge placed at O will experience a force due to these charge. Okay, then total force or net force experienced by charge Q0 will be vector sum of forces experienced by several charge. तो बाकी जितने भी चार्ज हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं उन सब चार्जेस के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल फोर्स वो Q0 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा along negative x-axis direction like this. And according to question, चार्ज जो है वो इनफाइनाइट है, तो इस वजह से अपने इस सीरीज को अप टू इनफाइनाइट ले चलते हैं. By Coulomb's law, force between Q0 and Q1 will be, कितना फोर्स होगा देखो, डिस्टेंस क्या है, दिस वन इज ओरिजिन एंड 1 मीटर, डिस्टेंस है 1 मीटर. फोर्स होता है फॉर्मूला K Q0 Q1 ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मींस 1 मीटर का स्क्वायर. क्लियर? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला है. सिमिलरली फोर्स FB, अब ये फोर्स FB कौन अप्लाई कर रहा है? चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q0. देन Q0 एंड Q2 के बीच का फोर्स कितना होगा? K Q0 Q2 over square of distance from origin 2 meter. Clear? Then square of 2.
और इट कैन बी रिटन एज R1 R2 R3 लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस FC इक्वल्स टू K Q नॉट Q3 over 4 square, and similarly due to last charge or due to charge Q4, force will be like this, square of it. Okay, then अब मेन चीज क्या है, एक तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन, Q नॉट कॉमन और Q1 2 3 4 ये सब कॉमन ही है, बिकॉज Q1 Q2 Q3 Q4 all are equals to 4 माइक्रोकूलम। That means मैं अब इस Q1, Q2 और Q3 एंड 4 की जगह ओनली Q लेट कर सकता हूं, तो अपने पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई। देन वैल्यू कुछ इस तरह से बनी K Q Q नॉट, ओके, कॉमन हो गया, एंड 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 4 प्लस डैश डैश। क्लियर? अगर आपको याद हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी और ओके 10th में भी, दिस वन इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीरीज। क्लियर? ये जो सीरीज आ रही है 1 स्क्वायर 1 ओवर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये जियोमेट्रिक सीरीज है। और इस जियोमेट्रिक सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो है a, एंड रेशियो क्या आ रहा है, देखो यहां पर क्या है 1/2 स्क्वायर, यहां क्या है 1/4 स्क्वायर, तो रेशियो क्या आएगा 1/4/1/16 मींस 1/4। नहीं पता लगा तो अपने इसको करके देखते हैं। ओके, अब डायग्राम की जरूरत नहीं है अपने को। देखो इधर, and this one is called geometric series where a is equals to first term which is 1 and ratio r is equals to, then how can we find out ratio? The formula is 1 over square of 2 divided by 1 over square of 1, then we get here 1 over 4 divided by 1 by 1 means ratio is 1/4। okay, तो रेशियो जो आएगा अपने पास 1/4 आ जाएगा। चाहे आप यहां से फाइंड आउट करो, तो ये कितना है 1/2 स्क्वायर, क्लियर, और सॉरी 1/4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर 2 4 स्क्वायर कैंसिल, तो ये अपने पास बच गया 2 स्क्वायर। क्लियर? देन क्या है अपने पास 1/4/1/1 मींस 1/4। देन रेशियो वी गेट, चाहे आप इन दोनों में फाइंड आउट करो, कितना होगा 1/64 8 का स्क्वायर 1/64 डिवाइड बाई 1/16 बिकॉज 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 1/4 मींस रेशियो जो है वो अपने पास आ रहा है 1/4। क्लियर? देन इन दिस केस इस सीरीज का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस वन विल इक्वल्स टू a over 1 minus r। क्लियर? ये एक बेसिक फॉर्मूला है इसका। देन वैल्यू विल बी a इक्वल्स टू 1 minus 1/4 means 1 over LCM 4 minus 1 3, 1/3/4, after solving we get 4/3। This 4/3 is the result or solution of this geometric series। Clear? Then force experienced by charge Q naught will be K Q naught and 4/3। Clear? कुछ इस तरह से ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की ओर है, देखो सब फोर्स जो है इधर, सब जो चार्ज है वो इधर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। देन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ड्यू टू दैट मैं यहाँ यूज कर दूंगा माइनस आई कैप। अब अपने को इसकी जरूरत नहीं, इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। देन F naught vector equals to K 9 into 10 raised to power 9 Q जो चार्ज थे 4 माइक्रोकूलम 4 into 10 raised to power -6। Q naught वो चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा था और वो 1 कूलम का था, एंड 4/3 as it is
and minus I cap as it is. Then 9 to 3 to 9 cancel, 3 हो गया, 3 into, अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, 3 into 4 12 into 4 48 and 10 raised to power 6, 9 यहाँ है, minus 6 है, तो ये अपने पास only 3 and आ जाएगा साथ में minus I cap. क्लियर? एंड इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4.8 ओके इनटू 10 रेज टू पावर 4 माइनस आई कैप एंड फोर्स था तो वैल्यू आ जाएगी न्यूटन. तो ये है अपना रिजल्ट. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं. Example 1.14 मिल गया. Then according to example, then according to example 1.14, an oil drop has charge equal to that of 12 electrons. Clear? कोई oil drop है, okay? और उसका जो चार्ज है which is equals to the charge of 12 electron. It is in equilibrium with a stationary electric field of 2.55 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. और ये ऑयल ड्रॉप जो है वो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विलिब्रियम में है. देखो, ड्यू टू द मास एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑयल ड्रॉप विल एक्सपीरियंस वेट फोर्स, ओके, इन डाउन साइड mg एंड दिस वन गेट बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस अब देखो ऑयल ड्रॉप है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है ये बैलेंस में रहे, तो ये जितना फोर्स नीचे लग रहा है सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स ऊपर लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल इक्वल्स टू F इक्वल्स टू QE. कुछ इस तरह से. अब अगर फोर्स ऊपर की ओर है और ये नेगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? डाउन साइड. ओके, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ड्यू टू दैट मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा, ओके, जो डायरेक्शन को शो करेगा, एंड डाउन साइड में मेरे को नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा. क्लियर? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर होगा और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप वो ऊपर की ओर होगा. इन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ फोर्स will equals to each other, means QE is equals to mg. Clear? And Q is equals to 12E. That means 12E into E is equals to mg. Okay? करना क्या था अपने को? Then determine the radius of oil drop. Good. अपने को देखो इस इक्वेशन से कुछ नहीं पता लगेगा. Radius of oil drop. Clear? और डेंसिटी भी दे रखी है, देखते हैं. देन डिटरमाइन द, हाँ ठीक है, डेंसिटी भी है. ओके, वेल वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. देन मास कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ लाइक दिस, मास विल इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम. तो मैं इसको m को रिप्लेस कर देता हूं. 12EE इज इक्वल्स टू रो v एंड g. क्लियर? वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप स्फीरिकल शेप में है, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 12EE इक्वल्स टू रो 4/3 पाई r क्यूब एंड g. ओके, नाउ 4 to 12 कैंसिल, कितना? 3 एंड 3 into 3 9 आ जाएगा अपने पास. क्लियर? और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है. Then value will be 3 into 3 9 EE is equals to rho pi r cube g. Then r cube will equals to
9e into e over आ जाएगा अपने पास रो पाई एंड जी. क्लियर? Cube taking cube root, then r will equals to 9e over rho pi and g 1/3. अब क्वेश्चन में यहां तक तो इसका था कंसेप्ट. अब अपने को इसकी वैल्यू पुट करनी है और आगे सॉल्व कर लेना है. ओके, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट है वो आएगा r is equals to, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, आपने सॉल्व करके देखना है, 9.8 into 10 raised to power minus 7 मीटर. ओके, एग्जांपल 1.15 देखते हैं. ये अपने को कह रहा है an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field. ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, मींस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन दोनों हमेशा ऊपर अपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉन डाउन साइड में 1.5 सेंटीमीटर गिर रहा है. दैट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जस्ट अपोजिट टू द फॉलिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की ओर होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा. Clear? Now in this case, force experienced by electron will be F equals to QE due to this electric field. And at place of Q, we can put or write down also E. Clear? And force by the second law of Newton's motion, MA, EE. Then acceleration will be EE over m. Clear? Acceleration of electron will equals to like this. Means इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है एंड ड्यू टू दैट वो 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है. When the direction of electric field is reversed, okay? अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दो. मींस यहां माइनस कर दो और इधर आप कर दो प्लस. ड्यू टू दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फ्रॉम top to bottom. Okay, when the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. Good. इस केस में तो इलेक्ट्रॉन गिरा, अब प्रोटॉन गिर रहा है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सही है बिल्कुल. नो प्रॉब्लम एंड 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वो भी गिरा. क्लियर? इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डायरेक्ट इसी की तरह कर सकते हैं. बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा फॉर प्रोटॉन लाइक दिस EE ओवर मास ऑफ प्रोटॉन. बस. क्लियर? कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. गुड. अपने को टाइम ऑफ फॉल फाइंड आउट करना है, मतलब कि इतनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल कर ली. मींस टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है एंड टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन भी फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो देखो, अपने को डिस्टेंस पता है, ठीक है, एंड रेस्ट से ये स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 गिवन. क्लियर? u गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है. देन बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर, टोटल 3 इक्वेशन होती हैं. v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर and v square equals to u square plus 2a and s. टाइम के लिए तो थर्ड इक्वेशन जो है सुटेबल ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो. अब बची दो. इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम फाइंड आउट करना है, बट वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल. देन इन दिस केस ओनली ये बची. देन S is equals to ut plus half of 80 square. S क्या? डिस्टेंस कितनी है? h 1.5 सेंटीमीटर. h equals to u 0 into t nothing plus half acceleration for electron AE and time for electron TE like this. Then from here 2 इधर
2h equals to AE TE square means TE square equals to 2h over AE. हो गया। अब AE की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, क्लियर। देन अपने AE की वैल्यू यहां से फॉर्मूला से पुट कर लेंगे। देन TE square will equals to 2h over AE which is EE ME. Then TE will equals to the root of this one. Clear? Similarly, for proton, time will equals to 2h mass of proton over EE. Then अब TE जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, रूट 2 1.5 सेंटीमीटर है, मीन्स 10⁻⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ओवर ई। ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, -19। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास गिवन है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो एक तो 2 है, अच्छा ये पॉइंट है, देन 2 इंटू 1.5 ओवर 1.6 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻, ऊपर कितनी है टोटल? -31 एंड -2 -33। ओके, तो 10⁻⁻ है -33 और नीचे है 19 एंड ये प्लस का, तो 10⁻⁻15 हो गया। ओके, ये ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है, तो रूट, पहले मैं पावर वाला लिख लेता हूं, 10⁻15 ऊपर गया पॉजिटिव, तो माइनस का 18 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये वैल्यू एज इट इज, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन 10⁻⁻18, इसका तो रूट हो गया 10⁻⁻9 एंड टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट सेकंड हो जाएगी। अब बात आती है इस वैल्यू की, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा रफली सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो अपने पास है वैल्यू 1.5 टू 1.6 अप्रॉक्स कैंसिल, ओके, एंड कुछ मिसिंग है, हाँ 9.1 बच गया था, 9.1। ओके, कुछ और तो नहीं, 2 1.5 9.1 1.6 2.55। ओके, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। 1.5 1.6 अप्रॉक्स कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली 2 एंड 2.55 को अगर मैं कैंसिल कर दूं, ओके, अप्रॉक्स मान करके, देन ओनली 9.1 बचा, तो अप्रॉक्स 9 तो 3 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है। तो अपने को जो रिजल्ट मिला अकॉर्डिंग टू बुक वो है 2.9। गुड, तो अपने को मिला 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। Similarly, same to same for proton, time period will be only mass of electron की जगह mass of proton आना है, because चार्ज तो सेम होता है। कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, तो चेंज कहां होना है? सिर्फ यहां 1.67 एंड यहां पर अब ये नहीं आएगा, 27 एंड 2 29 आ गया, और ये तो चलो ठीक है, ओके एकदम, ये एज इट इज यहां रख देंगे। 10⁻⁻, कितना बचा? -15 ऊपर गया, प्लस का हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 आ जाएगा माइनस का, तो रिजल्ट में यहाँ -7 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कॉपी से बता रहा हूं आपको, 1.3 इंटू 10⁻⁻2 7 सेकेंड आ जाएगा। तो ये था अपना न्यूमेरिकल। फिर इसको कह रहा है देन डिटरमाइन आंसर लगे, कंपेयर द फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कंपेयर करना है फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी से। अब ये फ्री फॉल क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द ग्रेविटी एक्सेलरेट हो रहा है और नीचे गिर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्लियर? तो अब इसमें अगर अपने देखें टाइम बहुत कम है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं, देन
सपोज दैट फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें, देन वी गेट E 1.6 into 10 raised to power minus 19, filled 2.55 into 10 raised to power 4 over mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31, means इनको एक बार छोड़ते हैं, that means into 10 raised to power देखो minus 31 है, ऊपर चला गया तो कितना हो गया प्लस का 3 1 and 4 35 and minus 19, तो ये अपने पास कितना आ गया, ओके 16 10 raised to power 16, क्लियर। दोबारा से देखो अगर नहीं पता लगा तो ऐसे कर लेते हैं, माइनस 19 प्लस 4 एंड प्लस 31, क्योंकि ऊपर चला गया, ये 35 हो गया, 35 माइनस 19 तो अपने पास आ जाएगा 16, क्लियर। अब जरा सोचो, इसको सॉल्व करने पे भी कुछ आएगा, देन एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है, ओके, देन विल कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। ये क्या चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से यहां हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन, क्लियर। तो और ये था अपना न्यूमेरिकल 1.15, ओके।